And today I have a very special guest with me. One interesting fact about him is that he turned 100 years old last year in September, and he's जो अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं वो आप सब लोगों तक पहुंचे. I'm proud to have Tara with me. At this young age, God has given her all the blessings. Wherever she is in Bangalore, Gurgaon, anywhere in UK, I always used to get, how are you uncle, how are you uncle, it's so nice of you. Remember first when I came, we clicked the picture, like I came with my sisters, and that picture is still here. I don't know if anyone can see it. बेटा जिंदगी है तो गुजारना है. ने मुझे बताया था शुरू में कि आप भी योगा प्रैक्टिस करते हैं. फिजिकली अपने आप को फिट रखा हूँ. दैट इज द रीजन फॉर ऑल दिस. बट जीवन अगर उसने दिया है हमें, हाँ जी, तो उसका फायदा खाने पीने में मत करो. लोग जीते हैं कि खाने के लिए जियो, हाँ जी, नहीं जीने के लिए खाओ. हाँ जी. जितना आपको हजम होता है उतना खाओ. It has always been a lovely experience meeting him and getting to know more about him, his lifestyle, and he's a great person, very inspiring. She has visited me. I'm proud of her. Thank you so much, uncle. That means a lot. Thank you. Namaste everyone, I'm Parul Jain and I'm again here with a new podcast on my channel Yoga with Parul Jain, and today I have a very special guest with me, Mr. Handa. I've known him for almost a decade now and I've been coming here and visiting him. It has always been a lovely experience meeting him and getting to know more about him, his lifestyle. He's a great person, very inspiring, and he's like a grandfather figure to me. And one interesting fact about him is that he turned 100 years old last year in September and he's running 101. And I'm so happy that I'm here sitting in front of him. This podcast is more about sharing his experiences with all of you. He has seen a lot of things in his life, be it personal, professional, emotional, health-wise, and so many other things. So ये एक मौका था कि मैं चाहती थी कि अंकल के साथ बैठूं और उनकी बातें, उनसे बातें शेयर करूं और वो जो अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं वो आप सब लोगों तक पहुंचे. I'm proud to have Parul with me. At this young age, I can't say God has given her all the blessings. Normally, young people, they want to enjoy their life. They want to enjoy the world over. But I don't know what thoughts she has in her. Ever since we have come to know each other, she is always, wherever she is in Bangalore, Gurgaon, anywhere in UK, always used to get, how are you uncle, how are you uncle, it's so nice of you. It is just like, I think, so old, जन्म के जो होते हैं पुराने, वो कोई ऐसा इसी बिटिया के अंदर है मेरे लिए. That's why she has all the way come here. Even today I was not feeling well. I thought she will come all the way. All the people around me were telling me, uncle, आज बहुत ठंड है, you have not to come out. So I was saying, but I insisted on her, please don't come, please don't come. And in spite of all this wind all around, snow falling all around, but now she wants into me. I'm a very small man. Not at all. Nothing I am in me. I would like to say that when I first met him, he was also energetic, and till date he's like that. And whenever I meet him after going back home, I have a different energy inside me. And it's always so lovely to talk to him. And I remember first when I came, we clicked the picture, like I came with my sisters, and that picture is still here. I don't know if anyone can see that. That picture is still here. And today again, uncle, I would like to recreate that moment, and would love to talk to you, and I would want you to share your experiences, your life experiences with everyone out here. मैं बेटा जिंदगी है, इसको गुजारना है. भगवान ने हमें भेजा ही इसी काम के लिए कि वी शुड डू समथिंग
फॉर रिजल्ट नॉट फॉर आवर रिजल्ट। तो मेरे पास एक प्रेयर है जिसमें मैं आपको रखी है मैं पढ़ने के लिए। हाँ जी। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयां हिम्मत बढ़ाने के लिए। हाँ जी। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी समृद्धि, उसने मुझे दी समझ काम करने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने मुझे दिए दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियां उबर पाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने मुझे दिए अवसर उन्हें पाने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो मैं ये ठीक है, बचपन से ही महात्मा गांधी जी का समय देखा हुआ है। नमक आंदोलन हुआ, अंग्रेजों टैक्स लगा दिया नमक के ऊपर। हाँ जी। पंडित नेहरू आया था घोड़े पे, सुभाष चंद्र बोस जी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा, अपने लक्ष्मीबाई INN वाले, हाँ जी। सहगल, ये सारा वक्त हमने वो उनके हाँ साथ जी। ही गुजारा है। अंकल आपने तो प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों फेजेस देखे हैं। बहुत चीजें, वर्ल्ड वार बेटा देखी, यस यस। वर्ल्ड वार 2 देखी, उसके बाद फिर आंदोलन देखे अंग्रेजों को निकालने के लिए। हाँ जी। तो एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, ओके। अहमदाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में था तो आई वाज चैंपियन ऑफ माय कॉलेज। ओ वाओ, कौन सा स्पोर्ट खेलते थे अंकल आप? I was in athletics as well as other games. Any Okay. games I was a master in. वाओ, दैट्स तो वंडरफुल। वहाँ मैं कॉलेज का चैंपियन कराया जाता था। बचपन से मेरे अंदर कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें आई कि I never wanted to be a leader or anybody, but I wanted कि I should do something for the nation. यस। हॉस्टल में बच्चे थे शांति जी, ओके। he was very good artist. हाँ जी। तो उसने क्या किया, अंग्रेजों की लेडीज की फोटो बना के जैसे बड़े बड़े पैम्फलेट बनाए, क्विट इंडिया, हाँ जी। अंग्रेजों चले आ जाओ, क्विट इंडिया क्विट मूवमेंट। इंडिया मूवमेंट। हाँ जी। तो मनु भाई ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आना भाई, बाकी लोग जो कर रहे हैं डिस्ट्राय कर रहे हैं, कोई गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, आप ये काम करो। मेरे पैर में बल पड़ने लगे, मैं किस काम में फंस गया। और रात का वक्त 9 साढ़े 9 बजे समय ईसाई कह के आना भाई की ड्यूटी लगाओ, ये अंग्रेजों की कोठियों में जाके ये पोस्टर लगा के आएंगे और सड़कों पे भी लगाएंगे। मैं मना नहीं कर सका उसको। हाँ जी। आई हैव दैट स्पिरिट इन मी आल्सो कि देश की सेवा पहले, अपनी सेवा बाद में। मैंने कहा अच्छा भाई जैसे कैसे हो, मुझे एक आदमी और तो दो। उन दोनों ब्लैकआउट हुआ है, नहीं अभी बात खत्म हुई थी, तो सड़कों के ऊपर लाइट नहीं बचती, इस वजह से कि ऊपर से जहाज आए तो उनको शहर नजर आए, उनको दिखे ना कुछ। तो मैंने कहा भाई एक आदमी तो दो जो कम से कम मेरे को गम लगा के पोस्टर लगाने के लिए देगा। तो उन्होंने मिस्टर भट्टल भाई को मेरे साथ लगा दिया। पीछे से थप 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 चप्पल में पुलिस के गार्ड आ रहे थे। मैंने कहा बोलो गए, दूर से आवाज दी, देखो कौन है, छोटा साइड ऑर्डर है और आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा तुम बस बोलियो, एक आदमी बोलेगा झूठ बोलूंगा मैं जो भी। हाँ। भगवान की कृपा हुई कि उसमें 3-4 पठान निकल आए, उसमें से 2-3 आदमी वो
पहचान गया, हांडा भाई खुदा कसम गोली मारता था। खान भाई बहुत मेहरबानी आपका, बहुत मेहरबानी आपका, हम बच गए। हाँ जी। उनको कहते थे भाई तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, क्यों मारते हो? हाँ जी। कहते देखो जब वो गोरा आता है तो हम आपको मारते हैं, जब वो गोरा चलता तो हम जमीन पर लाठी। तो एनीवे वो टाइम हमने देखा। हाँ जी। उसके बाद आ गया पार्टीशन। हाँ जी। 47 1947, यस। 47 हुआ तो मैं कराची में था उन दिनों में। आई वाज वर्किंग फॉर लैंप फैक्ट्री, तो मुझे हॉलैंड जाना था ट्रेनिंग के लिए फिलिप्स के साथ। सो आई वाज गेटिंग ए ट्रेनिंग फॉर दैट। आप उस टाइम कराची में जिस दिन पार्टीशन हुआ? हाँ पार्टीशन कराची अच्छा। में था। फिर मेरे पिताजी ने, उनका दोस्त था, उसको चिट्ठी लिखी कि मेरे बेटे को वहां भेज दो पाकिस्तान, लाहौर में। तो मुर्शी साहब ने कहा उनकी फैमिली बाद में जाएगी, मेरी फैमिली बाद में जाएगी, योग की फैमिली सबसे पहले, उसके साथ शादी हो गई थी मेरी। मेरी दादी मेरे साथ, एक सर्वेंट मेरे साथ। उन्होंने फोन कर दिया लाहौर के भी ऐसे ऐसे बख्शी सब मना कर रहे हैं कि लाहौर में तो इससे ज्यादा गड़बड़ है, ज्यादा। तो वो क्या करेगा? फिर भी हमें जाना ही पड़ा। गए लाहौर गए तो दिखा रात के वक्त आ गए हम तलवारें लेके बैठे हैं, आग लग रही है, वो खाना खा रहे हैं, आगे उसमें भी हिस्सा लेना पड़ा। फिर मेरे पिताजी ने कहा बेटा अब लाहौर तो जा रहा है पाकिस्तान में, पहले लाहौर जाना था, कलकत्ता जाना था और लाहौर नहीं जाना था। जो मेरे मामे जो थे वो बहुत थे, आर्मी में थे। अच्छा। उनको किसी को पद्मवीर चक्र मिला था आर्मी में, किसी को कुछ मिला। तो कहने लगे पापा जी क्या कर रहे हो? बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, क्या कर रहे हो? आप निकलो यहाँ से। हमें अच्छा भाई क्या किया जाए? फिर हम लोग वो वहां से उनके ट्रक वगैरह ले, मिलिट्री के ट्रक वगैरह, हमारे साथ चर्चा जगह है, उसमें आके कोई गांव था, उस फादर के दोस्त है, उसकी बड़ी बड़ी कोठी थी, वहां आके ठहर गए। वहां से फिर हम लोग शिफ्ट करके शिमला में डिक्सई है, सोलन के पास, वहां जाके रहे। फिर फादर बाद इनमें बैंक, नेशनल बैंक लाहौर। पार्टीशन के बाद भी बैंक में लाहौर में उन्होंने 1.5 साल 2 साल। अच्छा, वहीं जॉब किया। हिंदू लड़के काम करते थे, कहते मेरे को तो नौकरी मिल जाएगी, बट अबाउट दिस बॉयज। फिर उनको बैंक वालों ने कहा कि आप यहाँ पर एक ब्रांच हमारी, वहां आ जाओ। तो जितने आपके पार्टीशन से लोग आए हैं बिजनेसमैन, उनको बोलो कि हमने ब्रांच खोल दी है, दे शुड वर्क विद यू। उन्होंने लगा आके, तो लकी के लिए एच ब्लॉक कनॉट प्लेस में एक फैक्ट्री थी, सोडा बड़ी फैक्ट्री, वो बेचना चाहता था। तो बैंक वालों ने वो खरीद के अच्छा बैंक की ब्रांच बना दी। तो माय फादर वाज आल्सो अ वेरी हाई थिंकिंग पर्सन। तो एक मीटिंग हुई तो वी वांट टू कम एंड सी योर, हमारा बोर्ड आना चाहता है, देखना चाहता है कि बैंक की क्या प्रोग्रेस है। हमने कहा यह वेलकम। तो मेरे पिताजी बड़े इंडिपेंडेंट थिंकिंग के, बड़े अच्छे विचारों के थे। उन्हें रायबाज जानकीदास, एस्कॉट, हरिनंदा, बड़े बड़े जैसे व्यापारी थे, उनको बुलाया। हाँ जी। मीटिंग करी कि मैं भाई एक पार्टी कर रहा हूँ, सफदरजंग क्लब है वहां पर। हाँ जी। और आप ऐसे करना, जब भी जहां जहां आप वो मिले उनको ये बोलो कि भाई यू हैव टू सेंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट नेशन, यस, वी हैव all the resources and skills. हाँ, टैलेंट है हमारे, बच्चे हमारे बड़े लायक हैं, सब हैं। दे आर ऑल, गवर्नमेंट कॉलेज का है, कोई डीवी कॉलेज का, कुछ तरह तो अच्छे पढ़े हुए हैं। तो व्हाई यू हैव टू सेंड ऑल दोज पीपल। अंग्रेज बहुत सा बड़ा पक्का है, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा वेल आई कांट प्रॉमिस यू हियर,
let me put this proposal when I go back. जब मैं वो कहेंगे कि यस ओके, 10 दिन के अंदर बेटा ये सर्कुलर आ गया, पाकिस्तान को भी इंडिया को दोनों को फायदा हो। अरे वाह। कि नाउ यू सेलेक्ट certain boys for the posts, हाँ जी। and we will train them for years in Lebanon and then post them here in police. Okay. तो आज जो ये आप नेशनल चार्टर बैंक मर्जर हो गया, this is the product of my father. Oh wow. So I am his son. I am proud of him. And I think those values Education are just getting passed generation over जो generation. एजुकेशन उन्होंने मुझे दी, मैंने भी उसका एडवांटेज उठाया। तो बाद फिर अंकल आप हमेशा दिल्ली में ही फादर की रहे डेथ हैं? हो गई, मदर की डेथ हो गई, भाइयों की डेथ हो गई, तो मैं किसी किराए पे मकान पे करोल बाग में रहता। आई वाज लार्सन एंड टोब्रो LNT yes yes. जिसमें वागड़ा डैम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। आई वाज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ वन ऑफ द डिवीजन्स, Okay. जिसमें आई यूज्ड टू गो टू ऑल ओवर इंडिया मार्केट माई मशीनरी। मैंने भगवान की कृपा से आई हैव वन मंत्र विद मी, दैट इज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। दैट वाज माय गाइडलाइन। और मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। हाँ जी, हमने बात करी अंकल लास्ट टाइम जब हम मिले थे। हम आपने अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की थी, बहुत इंस्पायरिंग थी वो। आपने बहुत जगह काम किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। थ्रू माय पर्सनल टच विद द पीपल हु हाँ जी, blessings of God, I could succeed in getting those things. भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दी थी हाँ जी कि मैं अच्छा जिंदगी रही है, यहाँ भी बहुत अच्छा रहा है जो मेरे से हो सका। जीवन अस्पताल में इनका नाम करवाया हुआ है, जो यहाँ से जाता है उसको 10% डिस्काउंट मिलता है। अंकल हम आपकी डेली, जिसे हम कहते हैं ना डेली रूटीन या दिनचर्या, उसके बारे में जानना के बारे में, खाने के बारे में। आपका कैसा, आप कितने बजे सोते थे, उठते थे? सुबह बेटा, बिकॉज आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, सुबह पहले तो हमारे यहाँ कुश्तियाँ होती थी, अखाड़े में जाते थे। अंकल हम आपकी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके की डाइट लेते हैं, डाइट ऐसा था दिन में खाना खाते हैं? बेटे, क्योंकि आई वाज ब्रॉन एंड बॉर्न इन पंजाब, तो पंजाब का जो पानी था ना, इट वाज जस्ट लाइक देसी घी। हाँ जी। अब यहाँ तो आपको अमोनिया डालते, फटकड़ी डालते हैं, इवन इट्स नॉट प्योर। वहाँ के पानी का जो प्योरिटी थी ना, भूख लगती थी, जो हम खाते थे अपने आप हजम हो जाता, पानी पीने से हजम हो जाता। हाँ जी। घी, देसी घी खाना। हाँ जी। अडल्ट्रेशन कोई थी नहीं, दवाइयाँ गलत मिलती नहीं थी, सब्जियां जो प्योर मिलती थी बिल्कुल। हाँ जी। जो वहाँ का वेदर है ना, हाँ जी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। प्योरिटी, एवरीथिंग इन प्योर। अब तो पढ़ो, दवाइयां भी डॉक्टर गलत बेच रहे हैं, पोल्यूशन इतना है कि दिल्ली में रहना जो है लोगों का, वो सब चीजें कंबाइन करके हमारे अंदर आई हुई हैं। हमारा फेस, यू लुक एट फ्रॉम पठान टू दी मद्रास, तो आपको क्लाइमेट चेंज मिलेगी। एवरी 100 माइल्स थोड़ा चेंज आता है। हमारी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा, लैंग्वेजेस, कल्चर, हर चीज चेंज हो रहा है, डिफरेंस है। हाँ जी। सो फ्रॉम चाइल्डहुड हमारे पेरेंट्स जो थे ना, हमें उठा देते थे, जाओ भाई सैर करके आओ। हाँ जी। तो फिर बाई चांस, क्योंकि अखाड़े थे वहां पर, हम कुश्तियां करते थे, कुश्तियां लड़ते थे। रेड बने हुए थे, जो कुआं चलता ना, बैल लगा देते थे। हाँ जी। तो बैल नहीं, हम खुद ही उसको, वो पे पानी आता था ऐसे। हाँ जी। पानी देखा होगा आपने, तो वो
चलता था वो देखे हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मैं शुरू से ही हमेशा एक्टिव रहे हैं। शुरू से ही हमें बड़ा कुछ फिर जो- स्पोर्ट्स, आपने बोला आप स्पोर्ट्स भी बहुत खेलते थे। फिर जिस स्कूलों में हम गए वो भी सनातन धर्म स्कूल, हाँ जी। डीएवी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो उनका भी हमारी जो पढ़ाई थी, एजुकेशन, हमें वेद पाठ पढ़ाना, हमें अच्छी चीजें सिखानी, तो वो हमारी जो बैकग्राउंड बड़ी है ना उसमें बड़ा हमारी मदद करी। तो खाने में ये सुबह था कि हमारे यहाँ पिन्नियाँ पिन्नी, हाँ जी। मशहूर थी, हाँ जी। मर्दबान भरे हुए थे। मैं दादी के घर में जाता था तो आम का मुरब्बा, इतना बड़ा मुरब्बा जी। के रखा। हाँ, पता नहीं कैसे वो लोग करते थे। मैं बेटा इतना साधारण जमाना था। हाँ जी। इवन हम जाते थे माता रानी के दरबार पर, भगता पाई दे जा, एक पाई की कीमत थी। एक अधेला, एक अन्ना, एक दुवन्नी, एक चौनी, चवन्नी। 1 रुपया चांदी का, जिसकी पूजा हम दिवाली के ऊपर करते थे। हाँ जी। अभी भी लोग करते हैं। तो दैट टाइम वी हैव सीन यस। प्योरिटी, हर आदमी के अंदर कोई धोखाधड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी। फिर पॉपुलेशन की वजह से एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, मकान थे, मकान बिल्डिंग बननी शुरू कर दी। जो आदमी दुकानदार था वो दुकानदार से बिल्डर बन गया, हाँ जी। बिल्डर से अब वो। तो ये धरती के ऊपर जो बाता हमने क्रिएट किया ना, दैट इज द रीजन फॉर ऑल दिस, जो हमें बीमारियां लग रही हैं जो, हाँ जी। वो हमने कभी, डॉक्टर भी इतने 3 खुराक देता था, शाम को आदमी तगड़ा होकर खड़ा हो हाँ जी। दंड बैठ कर निकाल लिया। हाँ जी। खाने में साधारण साधारण होता नहीं सिंपल था। खाना एकदम। फिर दांत जरूर साफ करने हैं, दातुन। दातन हाँ जो जी। होती थी। फिर काला नमक लेके और उसमें सरसों का तेल डाल के हाँ जी। दांत साफ कर लेने। कोई टूथपेस्ट नहीं दिखा था, हाँ। कभी कुछ नहीं दिखा था। घर में अमृत धारा हुआ करती, पेट में दर्द हुई तो माता जी ने चम्मच लेके अमृत धारा डाल देनी और 2-3-4 बूंदे और चम्मच खा लो, ऊपर से थोड़ा सा गोसा पानी पी लो, तुरंत पेट ठीक। आंखें, सिर हाँ दर्द जी। दूर। नॉर्मल बड़ी हाँ जी, चीजों, बिल्कुल घर के देसी नुस्खों से सब हो जाता था। फिंसी हो जाती थी, आम खाते थे हम लोग। जो हमें खाने पीने की चीजें है ना, खजूर ऐसे होते थे, पिस्ता, बादाम, अंजीर, हाँ काजू, ये अब फ्यूचरिस्ट कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी इन दी म्यूजियम आफ्टर सम टाइम। आपके बाप बच्चे जो आएंगे जो उनको दिखाया जाएगा कि ये काजू, ये अखरोट, ये बादाम, ये पिस्ता, ये चीजें आपके फोर फादर खाया करते। टाइम इज कमिंग। यस। हमारे घरों में ये ऐसे जब क्या है भाई, योग क्या लेके आया भाई, हाँ जी, हमेशा चिनगोजा, कुछ बादाम पिस्ते, हाँ, ड्राई फ्रूट्स निकलते हैं हाथ से। चिनगोजा। हाँ जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल तो बहुत लोगों को चिलगोजा पता भी नहीं होगा क्या होता है। शरदा, इतना बढ़िया खरबूजे की जगह एक शरदा आता, इतना मीठा, काटना सारा फैमिली के, और इट इज वेरी प्योरीफाइंग फॉर दी टीबी पीपल। टीबी है या हाँ जी। ये क्या है, डायबिटिक। एवरी पर्सन, 3rd पर्सन इज डायबिटिक हियर। यस। वो जो चीजें हमने खाई हुई है ना, तो उसका प्रभाव है। हाँ जी। घी से ऐसे खाते थे हम। हाँ जी। जब मक्खन, भैंस घर में थी सफेद तो मक्खन। इतना बड़ा तंदूर रखा हुआ था, उसमें दूध बनता था। हाँ जी। शाम को इतना बड़ा गिलास दूध का। तो आई वाज ए स्पोर्ट्समैन, तो आई यूज्ड टू गो फॉर बोटिंग। हाँ जी। दरिया थे हमारे, तो शाम को हम चले जाते थे, 3-4 घंटे बोटिंग करके वापस आना। साथ फल ले जाते थे, संतरा, माल्टा। क्या बताऊं तेरे को बेटा, संतरे को किसी बाग से तोड़, कोई मना नहीं करेगा, हाँ जी, खा लो। शतूत, इतना इतना लंबा शतूत, जामुन, हाँ जी। अब देखने को कोई चीजें नहीं है। गला खराब है, अब तो डॉक्टरों को बुलाते हैं ना, हाँ जी। उन्होंने करना है ऐसे घी डालना,
हाँ जी। और ऐसे चूरी बनानी उसकी, हाँ हाँ। तो उसके अंदर पापड़ पापड़ लगा के वो करना ले बेटा, ऐसे करके लेगा, हाँ 2-3 दफा करना, ये सारा ठीक सब क्लियर हो जाता है, सारा कंजेशन। पिंसियाँ, हमारी दादी जाती थी, छप्पर होता पानी, तो उसमें जाला लगा होता है, वो काई जो आ जाती है हाँ ना जी लीवर हाँ पे, जी। उसको मिला के तो रसौंद होती थी, रसौंद, वो मिक्स करके तो लगा देना, 3 दिन के अंदर फुंसी ठीक। आम खाते थे ना, हाँ जी, उससे निकल आते हैं। तो जिन चीजों ने हमने देखा है कुछ अपने टाइम, नेचुरल चीजें जो आम घर में हर जगह मिल जाएंगी। हाँ, that was the time we have यस seen. यस। Even till the age of 82, I was used to play cricket, badminton. ओह वाओ। तो फिजिकली अपने आप को फिट रखा हमने. यस That is the reason for all this. What यस। I feel today. नो एब्सोल्युटली अंकल, बिकॉज अभी भी हम जब आपको देखते हैं कि इस एज में थोड़ा मेमोरी लॉस जिसे होता है, बट आप, मुझे याद है मैं जब भी आपको फोन करती हूँ आप तुरंत पहचान जाते हैं, अच्छा पारुल, तो मुझे लगता है कि अंकल ने मेरे को याद रखा। So long so I am in my own. क्योंकि दुनिया में जीवन अगर उसने दिया है हमें, हाँ जी। तो उसका फायदा खाने पीने में मत करो. लोग खाते हैं कि लोग जीते हैं कि खाने के लिए जियो, हाँ जी। नहीं, जीने के लिए खाओ. खाओ। हाँ जी। जितना आपको हजम होता है उतना खाओ, उसके हिसाब से अपने आप को में रोज रखो. डू नॉट लिव टू ईट, ईट टू लिव। जो लिव, Yes. that is right. And 2-3 चीजें जिंदगी में, live, let live, to do something if you can do for Yes. others, not for Yes. yourself. यस The things which I can learn from you, I have never thought of those things. यस। इस तरह से जीवन अपना बेटा गुजारो, Yes. और जीवन यही है. अंकल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, जैसे इस आश्रम में इतने सारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, तो एज अ कम्युनिटी आप कैसे रहते बेटा हैं? दैट एक काम आओ, हाँ ये पुलिस की तरफ से, हाँ जी, डिप्यूटी चीफ कोऑर्डिनेटर, न्यू रोहतक रोड। तो कोई लड़का वाहन लगवा दिया. In 1 year I made no crime in my area. वाओ। अंकल मेरे को नंबर आपसे एक वाह। चीज और पूछनी है कि जैसे आपने बताया कि आप अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे, इवन बचपन से आप कुश्ती लड़ते थे और इतने स्पोर्ट्स खेलते थे, आप कोई और अभी इस एज में कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आपने बताया वॉक पे जाते थे, अभी भी जाते पता ऐसे हैं, है कि या सुबह कुछ में योगा, कोई एक्सरसाइज? मॉर्निंग में 6 बजे करीब में आंखें खुल जाती है, अच्छा। तो आई यूज टू टेक वॉक इन दिस हाँ जी, पूरा कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स. हाँ जी। दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस. यस आई हैव सीन दैट, इट्स ब्यूटीफुल। आम के पेड़ लगे हुए हैं, शतूत जी। के पेड़ लगे हुए हैं, जामुन के पेड़ है, इमली के पेड़ लगे हैं, आंवला का पेड़ लगे. यू विल फाइंड ऑल टाइप ऑफ. तो वो हमें आबो जो हवा जो मिलती है सराउंडिंग से ना, ऑक्सीजन, हाँ जी। दैट हेल्प्स अस. ये इतना बड़ा कोविड हुआ यहाँ पर, मगर हमारे प्रधान जी जो है यहाँ के, उन्होंने हमें बिल्कुल जाने नहीं दिया बाहर, ना किसी को आने दिया. हाँ जी। दैट इज वंडरफुल थॉट. हम लोग काफी बचे हुए हैं. ज्यादा फॉर्चुनेट क्या मैं अपने आप को समझ सकता हूँ. बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन इज ए क्राइम. देता वो जो भी मैंने ख्वाहिश करी है बेटा, विदाउट माई थिंकिंग चीज पहुंच जाती है, और हाँ इससे जी। बढ़िया और मैं क्या चाहता हूँ. बिल्कुल। अंकल बस आखिरी एक दो सवाल, एक चीज की आपने मुझे बताया था शुरू में कि आप भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या उसके अंदर करते हैं? आपने बोला थोड़ा बहुत करते हैं, और यहाँ पे भी योगा काफी भाई लोग है करते बेटा, मैं करता हूँ सुबह उठते ही ना, हैं। ऐसे बैठ जाता हूँ, बैठ के सांस लेता हूँ लंबा.
जितना मेरे से हो सकता करता हाँ हूँ। जी, तो ये बहुत अनुलोम विलोम। अरे वाह। फिर आंखों को आईज रोटेशन, यस। फिर सिर नेक को रोटेशन, हाँ जी। आई थिंक अंकल ये हम बहुत सारे लोग जो आपकी वीडियोस देखेंगे उनके लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल और एक इंस्पिरेशन होगा कि आप इस एज में इतना प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अब यंग एज से ही शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि कितने बेनिफिट्स होते हैं इन सब प्रैक्टिस के। नेचुरली बेटा, ये किसी के सिखाए से नहीं सिखाया हाँ जाता। जी, ये खुद से अंदर से आना चाहिए। हाँ जी, बाई नेचर कुदरत के अंदर से होना चाहिए। हाँ जी, तो भगवान की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, मैं तो यही कहूँगा। और आप लोगों का प्यार, जहाँ भी गया हूँ प्यार ही मिला है। She has visited me. I'm proud of her. Thank you so much, uncle. That means a lot. Thanks. To wrap up, our conversation with Mr. Y.B. Handa has shown us that age is just a number. His teachings remind us that staying fit and embracing life with a positive outlook can lead to a long and fulfilling journey. Until next time, stay balanced and be well, because real wealth lies in good health. Thank you and namaste. Thank you for watching this podcast. If you really liked the conversation, please do not forget to like, share, comment, and subscribe for more such content. Your support means the world. Until next time, take care and make healthy choices. Namaste.